ویلکم بیک. آغاز میں آپ کو بتائیں کراچی کے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی آگے نکل گئی. غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق 11 یوسیز میں سے 7 نشستوں پر کامیابی حاصل کی. جماعت اسلامی 4 نشستیں حاصل کر سکی. میئر کراچی کے لیے 179 ووٹ کی سادہ اکثریت کسی جماعت کے پاس نہیں. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی والوں نے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں بھی بلاول زرداری پر اعتماد کا اظہار کیا. پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان پر تنقید کے تیر بھی چلائے. کہا وہ اپنے ووٹرز کے نہ آنے پر مایوس ہیں. کراچی کی ترقی کے لیے تنازعات کو ختم کرنا ہوگا. ہم نے ایک مرتبہ پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو کہ قائم کیا تھا گورنمنٹ نے, کوئی چائنیز کمپنی ہے, کوئی ٹرکش کمپنی ہے, کوئی دوسری کمپنی ہے, ان کو کام دیے. پاکستان بھر میں سب سے بہترین میڈیکل فیسلٹیز ہے وہ کراچی میں. اچھی اور لیٹسٹ بسز بھی چل رہی ہیں. حافظ نعیم صاحب مایوس ہو کے 3 بجے منت پہ کر رہے تھے پبلک سے کہ خدا کے واسطے نکل کے آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. سائیکولوجیکل امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم تو جیت رہے تھے. 11 بجے تک ڈبہ ابھی کھلا نہیں, ڈبے میں بھی کاؤنٹنگ چل رہی تھی. ہاؤ ڈو یو نو کہ بھی آپ جیت رہے ہیں. اس پارٹی چاہتی ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ چلیں. جس کے بعد نمبر زیادہ ہے اس کا حق ڈیفینیٹلی بنتا ہے. عدد اس بار پہ ہم لوگ آگے ہیں تو مسلم جماعت اسلامی کو ساتھ ہمارے کام کرنا چاہیے. اگر اب آپ نے کراچی کو مزید آگے لے کر جانا ہے تو نو مور کانفلکٹس. تحریک انصاف نے کراچی کے ضمنی بلدیاتی انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا. پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے ڈبوں میں مہر لگے بیلٹ پیپرز بھرے گئے جہاں درجنوں ووٹ کاسٹ ہوئے. اسی طرح جماعت اسلامی نے بھی لیٹرز لکھے ہیں مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ان پہ. یہ پولیٹیسائز ہیں سارے لوگ. بیلٹ باکسز جو ہے پولنگ ایجنٹس کے جانے سے پہلے ہی بند کر دیے گئے. بیلٹ بکس جو ہیں وہ پہلے سے ہی ہینڈ اوور کر دی گئی جی والوں کو. وہ اسٹیمپ لگا کے اپنا بیلٹ باکسز میں جب وہ گئے ہیں ووٹ ڈالنے تو 7 2 3 4 بیلٹ پیپر ڈالتے گئے. کاسٹ ہوئے کورنگی میں 250 اور نکل رہے ہیں 550. یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے. 15 جنوری کو بھی یہ ایسا ہوا تھا. داستان دہرائی گئی ہے. 3 آدمی آتے ہیں پیپلز پارٹی کے 400-500 بیلٹ پیپر ایسے رکھ کے ہاتھ میں وہ لے کر اندر آیا. دوسرا ہمارا ایک اور اسکول تھا ایم ڈی کی اسکول کے نام سے UC 4 میں ٹوٹل 81 کو ووٹ کاسٹ ہوئے ٹوٹل, کیونکہ لوگ نہیں تھے, آئے نہیں تھے. جب کاؤنٹنگ ہوئی پتہ چلا یہ تو جناب 481 ہو گئے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ آج سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت کرے گا. عدالت عثمانی ایکٹ پر تحکم ثانی عمل درآمد روک رکھا ہے. راجہ محسن ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے, ان سے مزید جانیں گے. راجہ محسن آگاہ کیجیے گا سماعت کب شروع ہوگی؟ دیکھیے اب سے کچھ ہی دیر کے بعد 12:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ اس اہم کیس کی سماعت کرے گا. اور چیف جسٹس کے ساتھ اس بینچ کے دیگر معزز ارکان میں جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس حسن اظہر رضوی اور دیگر شامل ہیں. اور آج ہونے والی سماعت کے موقع پر یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ جتنے بھی فریقین ہیں اس میں, جس میں پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, 9 بڑی سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ یہ تمام لوگ اپنے جو تحریری جوابات ہیں وہ بھی عدالت میں جمع کروائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج سب سے اہم چیز ہے کہ جو ریکارڈ مانگا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے پارلیمانی کارروائی کا, جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بحث ہوئی اس سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ کے اوپر اور یہ تمام چیزوں پر جو بحث ہوتی رہی, یہ ریکارڈ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کی سماعت پر طلب کر رکھا ہے. تاہم حکومتی جواب کو اگر دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی ہے اور یہ کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ فل کورٹ بنائی جائے. تو دیکھنا ہے کہ آج جب 12:30 بجے اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوگا, اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کیس میں حکومت کی نمائندگی کریں گے تو وہ کمرہ عدالت میں تفصیل آگاہ کرنے کے لیے. آئین کے 90 دن میں الیکشن ہوں, ہم آئین پر عمل کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا تقریب سے خطاب. کہا سیاسی قیادت کے مذاکرات تاحال مکمل نہیں ہوئے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. Constitution enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is not our choice. It is our duty to say that. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. You say you support us. Please don't say that. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan, not any individual. The Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. When those judgments are not
appealed or no review is filed, then that means no one has any objection to the judgment. If a judgment is not challenged, then it becomes final. So let's see what happens now. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. करप्ट हुक्मरान आइन तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन है, लेकिन हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। फिर सड़कों पर निकल रहा हूं, पूरा यकीन है पहले से ज्यादा लोग मेरे साथ निकलेंगे। इमरान खान के फौज पर इल्जामात बर्दाश्त नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद के 2 बड़ों का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, इमरान न्याजी की फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ मुहिम और धमकियों की मजम्मत करते हैं। सियासी फायदे के लिए पाक फौज और एजेंसी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान न्याजी मेजर जनरल फैसल नसीर और एजेंसी अफसरान पर बगैर सबूत इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान न्याजी के बगैर सबूत इल्जामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी अपने बयान में इमरान खान की तकरीर की सख्त मजम्मत की है। आसिफ जरदारी ने कहा, इमरान खान का जवाल देख रहा हूं, एक फर्द इदारों को बदनाम करने की हर हद उबूर कर चुका, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक फर्द को मुल्क तबाह करने की इजाजत नहीं दे सकते। आसिफ जरदारी ने कहा, मेजर जनरल फैसल नसीर समेत बहादुर अफसरान पर इल्जामात कबूल नहीं। इल्जामात उस इदारे पर हमला है जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को दफन कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बयानात हैरान कुन हैं। बैसाखी पर खड़े दोनों लीडर्स को एहसास नहीं वो क्या कर रहे हैं। इमरान खान पर कातलाना हमले के नामजद मुल्जमान से तफ्तीश बुनियादी बात है। मुल्जमान से तफ्तीश से इनकार कानून दफन करने के मुतरादिफ है। एक और ट्वीट में लिखा, मौका मिला तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा गैर आईनी काबीना पर आर्टिकल 6 का मुकदमा कराएंगे। इन सूबों में तमाम अखराजात और इंतजामी अहकाम गैर यकीनी है और गैर आईनी है। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर कहते हैं, इस वक्त आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा जब आपका भाई और भतीजी जलसों में इदारों पर हमला कर रहे थे, उन पर पाकिस्तान को तबाह करने का इल्जाम लगा रहे थे। इमरान खान पर हमला करने के लिए इदारों के पीछे छुपने की कोशिश न करें। आप इमरान खान का सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान कर्ज प्रोग्राम ताहाल ताखीर का शिकार है, जिसके बायस बजट साजी का अमल मुतासर होने का खदशा है। 17 मई तक IMF के किसी इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान शामिल ही नहीं है। IMF का कहना है पाकिस्तान को बेहतर सूरत ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामदाद के मुसावी करना होंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF दोस्त मुल्कों की फंडिंग की यकीन दहानी से भी मुतमईन नहीं हुआ। पाकिस्तान ने मजीद $1 अरब की फाइनेंसिंग का प्रोग्राम दिया। नमे जायजा पर स्टाफ लेवल मुआहदे की खातिर मिनी बजट के जरिए 170 अरब रुपए टैक्स लगाए, लेकिन वो भी नाकाफी रहा। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको न्यूज। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस में रिकॉर्ड फराहमी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली का सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड फराहम न करने का फैसला किया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद है, मजीद आगाह करेंगे। बताइए अजहर। जी, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा था कि दायमा कमेटी और पार्लियामेंट के अंदर की जो कार्रवाई है इस बिल से मुतल्लिक उसकी तफसीलात और रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए। स्पीकर ने ये मामला कौमी असम्बली के सामने रखा और वहाँ पर मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली ने इसके साथ मुखालफत की थी कि ये रिकॉर्ड फराहम ना किया जाए। तो उस पर अभी तक ऐवान के अंदर बहस जारी है, अभी हतमी फैसला नहीं हो सका है। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली के जराये का ये कहना है कि ये रिकॉर्ड अभी फिल वक्त तो सुप्रीम कोर्ट को फराहम नहीं किया जाएगा और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐवान ने इसकी अभी तक इजाजत नहीं दी है। अजहर, आपका बहुत शुक्रिया। बद इंतजामी की रिवायत के साथ मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज। कराची में रातों रात इम्तिहानी मराकज तब्दील होने पर मुतादिद तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ा। अंदरून सिंध हस्बे रिवायत पर्चा आउट हो गया, खुलेआम नकल चलती रही। जैकबाबाद में जवाबी कॉपी ही इम्तिहानी। मजीद खबरें रिपोर्ट से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई रहनुमा असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों की रोजगार खत्म हो रहा है, और इस सब के अंदर हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत
तमाम तर अपनी तवज्जो जो उन्होंने लगाई हुई है वो ये है कि किस तरीके से इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के दूसरे लीडर्स के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ मुकदमात बनाए जाएं, झूठे मुकदमात बनाए जाएं, लोगों की गिरफ्तारियां की जाएं। और अब जो लेटेस्ट कल शाम से मैं देख रहा हूं, ऐसे जबरदस्त बयानात आ रहे हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, बड़ी वो कोऑर्डिनेटेड किस्म की एक कैंपेन होती है ना कि आपस में बातचीत करके जो चलाई जाती है। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि एक फौज के अफसर का नाम लेके उनके खिलाफ बात की है, तो ये तो बहुत बड़ा पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला है और किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अगर कौम भूल गई है, जो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि नहीं भूली, लेकिन फिर भी ये शायद जो बयान देने वाले ये भूल गए, मैं जरा इनको अपनी और इनके घर वालों की बातें याद दिला दूं। वो आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिन्होंने फौज के सरबराह को एड्रेस करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे और आप तो 3 साल के लिए आते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं बाद में भी। वो जरदारी साहब कह रहे हैं कि फौज के किसी अफसर के खिलाफ बात करना जो है ना बहुत बड़ा एक इदारे के साथ जुल्म है। हालांकि किसी एक अफसर के बारे में बात करना और इदारे के बारे में बात करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी गैरत जाग गई है। उन्होंने बड़ा जबरदस्त उन्होंने कल बयान दिया, उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल जो है वो पता नहीं क्या हो गया, कितना बड़ा जुल्म हो गया है। मियाँ साहब आप सो रहे थे जिस वक्त आपका भाई नवाज शरीफ जो है जलसों के अंदर नाम ले लेके आर्मी चीफ DGISI के खिलाफ बयानात दे रहा था। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, नवाज शरीफ कह रहे थे जनाब कमर जावेद बाजवा, कौन थे वो? आर्मी चीफ थे उस वक्त, कमर जावेद बाजवा, ये सारा गंद आपका फैलाया हुआ है। मियाँ साहब जरा जुबान खोलो ना अपने ओके। अगर फौज के किसी अफसर के खिलाफ बात करना थी, वो तो आर्मी चीफ थे, सारे पाकिस्तान समझता है और जानता है और कहता है कि चीफ का जो हर्फ होता है वो आखिरी हर्फ होता है पूरे इदारे के लिए। वो तो चीफ को बराह रास्त अटैक कर रहे थे। उनकी बेटी यानी आपकी भतीजी मरियम नवाज क्या क्या वो बोलती रही हैं जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फैज के बारे में, मैं तो रिपीट भी नहीं करना चाहता। मोहसिन नकवी साहब कूद पड़े, उन्होंने कहा कि कानून अपना रास्ता लेगा, कानून रास्ता लेगा तो वो सबके लिए लेगा। आप क्योंकि सियासी तौर पर नाकाम हो गए, आपसे इमरान खान के बयानिए का मुकाबला नहीं किया जा रहा। आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के हर कोने में कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, अपने आईनी हक के साथ खड़ी हो गई है, अपनी उस अदलिया के साथ, उस के साथ जो आइन का दिफा कर रही है उसके साथ खड़ी हो गई है। इस खौफ से आप आर्मी इमरान खान पे हमले करने की कोशिश ना करें। इमरान खान जो है उसने तमाम इदारों का, आपके भाई की तरह नहीं, मियां नवाज शरीफ की तरह नहीं, जब हुकूमत में आए जो आर्मी चीफ हुआ उससे लड़ाई हो गई, जो चीफ जस्टिस हुआ उससे लड़ाई होगी। इमरान खान इदारों की एहतराम करने वाले शख्स हैं, वो चाहते हैं इदारे ताकतवर हों, इदारे जो हैं वो प्रोफेशनली आजाद हों। इमरान खान इस बात में यकीन करते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि कोई अफसर जो है वो गैर कानूनी काम कर रहा है, ये उनका हक बनता है कि वो मुतालबा करें कि तहकीकात करें। वो तो ये नहीं कह रहे कि उनके कहने के ऊपर किसी को लटका दिया जाए, वो कह रहे हैं तहकीकात की जाए। ये उनका एक पाकिस्तानी, चाहे आप छोड़ दें कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, आप छोड़ दें इस बात को कि वो साबका वजीर आजम है, आप छोड़ दें इस बात को कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के चेयरमैन है, ये एक आम शहरी का भी हक है कि अगर वो समझता है कि किसी ने उसके खिलाफ कोई जुर्म का इर्तिकाब किया है तो वो मुतालबा कर सकता है कि उसकी तहकीकात हो। तहकीकात के अंदर पता चल जाएगा कि किसने सही कहा और किसने नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है और फौज के इदारे को सियासत के अंदर घसीटने की जरूरत नहीं है। सियासी मुकाबला करें। अगर आपसे इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता तो आप अपनी कुर्सियां छोड़ें और आप घर जाकर बैठ जाएं। आप सियासत करने के लायक नहीं। बहुत शुक्रिया। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तहरीक इंसाफ ने जिस वक्त अदालत ने ये कहा कि अगर चाहती हैं सियासी जमातें तो आप आपस में मुज़ाकरात कर लें और उन्होंने कोई टाइम भी दिया इसके लिए, अदालत का एहतराम करते हुए तहरीक इंसाफ बड़ी नेक नीयती के साथ उस मुज़ाकरात में बैठी
اور اس مذاکرات میں اب آپ مجھے ذرا دونوں طرف کا بیانیہ سن لیں کہ فرق کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے rvnews.tv.